وہ ہے اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں، کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے۔ اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا۔ ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت بھی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی، لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے عورت سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ نہیں سکتے، اگلی بات کو آپ چھوڑ دیجیے۔ تو یہ حدیث بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے۔ بھائیو، اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا۔ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے، اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی۔ زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے۔ بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، the knowledge obtained through observations and experiments، سائنس کا علم۔ ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو اسکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے، تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے اور بچا جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اہل سنت پاک.com پہ، پر میں نے اشارہ طرف گفتگو کر دی ہے کہ من کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آخر میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کر دوں، بڑے دو اہم مسائل ہیں، تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے، لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں، بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں mirza_95@yahoo.com، اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی ازمائش سے گزر رہا ہوں، ای میلز جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں، اس لیے بعض کا 7-8 دن لگ جاتے ہیں میں جواب، یعنی پہلے تو ایک دن میں دے دیتا تھا، اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تو بھی شکر ہے جو اہل سنت پاک.com پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں، ورنہ وہ بھی دینی پڑے، اور واٹس ایپ کا جو اللہ کا معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں کیا، کیونکہ میں اس کو مینیج کر نہیں سکتا۔ تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ، یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی، کیا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے، سارے تو نہیں، مطلب جو اہل علم سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا، ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 5099 5099، مسلم میں 3568 3568، اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3161، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے، جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے، اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے۔ تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے، اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں۔ وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 3167 3167، کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا 5 دفعہ کم از کم۔ تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا، جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23، چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں، ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں، یعنی ماں باپ کے ساتھ، اس طریقے سے دادی دادا، اس طریقے سے چچا تایا ماموں، یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 23۔ بھائیو، اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا، تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی، تو وہ احادیث منسوخ ہے، اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔
अब इमाम इब्न तैमिया उन हदीसों के ऊपर अमल करके उन्होंने फतवा दे दिया कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी का दूध पी ले तो निकाह भी टूट गया, हमेशा के लिए वो हराम हो गई। और ये सारा मामला, हालांकि ये हदीस मौजूद है बुखारी और मुस्लिम दोनों में। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5102, सही मुस्लिम में 3606 और मिशकात में 3168 3168 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अर्रदाअतु मिनल मजाअ, कि जो रज़ाअत का रिश्ता है ये भूख की उम्र तक है। जब बच्चा भूख की उम्र में दूध मांगता है, जुबान से नहीं मांग सकता, भूख की उम्र तक रज़ाअत का रिश्ता रहता है। और वो कुरान हकीम में 2 साल बताई गई है दूध छुड़ाने की उम्र। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कट फरमा दिया कि जो दूध छुड़ाने की उम्र है उस दौरान अगर कोई बच्चा दूध पी ले, और वो भी सही मुस्लिम के हदीस के तहत 5 मरतबा, तो तब रज़ाअत का रिश्ता, दूध का रिश्ता एस्टैब्लिश होगा, वरना नहीं होगा। तो आप जो बड़ा मतलब 2 साल कर नहीं है, तो इसमें जाहिर है कि बिल्कुल इम्प्लाइड है कि अगर कोई इस तरह का मामला कर लेता है तो ना रज़ाअत कायम होगी और ना मियां बीवी का आपस में कोई निकाह टूटने वाला मामला होगा। दूसरा अहम मसला आज का आखिरी, वो है मेरे भाइयों अज़ल का इशू, या मॉडर्न लैंग्वेज में कंडोम का इस्तेमाल। अज़ल अरबी में कहते हैं अलग हो जाने को, यानी जब मियां बीवी इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करें, डिस्चार्ज के वक्त वो अलग हो जाएं, इसको कहते हैं अज़ल। और उसी की मॉडर्न फॉर्म जो है वो कंडोम है, फैमिली प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मुफलिसी के डर से फैमिली प्लानिंग करना इस्लाम में कुरान हकीम की आयत की रोशनी में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं, कतई हराम। लेकिन अगर औरत की सेहत का इशू हो या औलाद की तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन हो, वो मामला अलग है, उसके ऊपर वो वाला फतवा नहीं लगेगा। और उसके सबूत में मैं 3 हदीसें पेश करूंगा, तीनों सही बुखारी और सही मुस्लिम से। लेकिन इसमें याद रखें कि जो लोग इस हवाले से मर्द अपनी नसबंदी करवा लेते हैं, यानी सेक्सुअली डिसेबल हो जाते हैं हमेशा के लिए, जानबूझ के मेडिकली करवा लेते हैं, या औरतें अपनी यूट्रस निकलवा देती हैं, अगर कोई बीमारी या कैंसर वाला इशू ना, वो अलग बात है कि ताकि हमेशा के लिए मामला एस्टैब्लिश हो जाएगी, कतई हराम है और बिदअत कुबरा है। ये अल्लाह की शरीयत को बदलना है, अल्लाह की तखलीक को बदलना है। सूरत निसा नंबर 119 के तहत ये कतई हराम और शैतानी फेल है। कोई मर्द जो है अपने आप को खसी करवा ले, या कोई औरत अपनी यूट्रस और हम जो है वो हमल का जो जरिया है उसका रहम उसको निकलवा दे। अलबत्ता अज़ल जो है इसकी इजाजत है। इस कॉन्टेक्स्ट में 3 हदीसें हैं, तीनों बुखारी और मुस्लिम से। पहली हदीस सही बुखारी में 5208, मुस्लिम में 3561 और मिशकात में 3184 कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि कुरान हकीम नाजिल हो रहा था और हम अपनी बीवियों के साथ अज़ल किया करते थे। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इसे मना नहीं फरमाया, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे बारे में खबर पहुंची कि हम अज़ल करते हैं, यानी बीवियों के साथ जब सोबत करते हैं तो डिस्चार्ज के वक्त अलग हो जाते हैं ताकि औलाद ना हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें मना नहीं फरमाया। नबी पे तो वाजिब होता है मना करना। और ये जाबिर बिन अब्दुल्लाह वो हैं जो 74 हिजरी में फौत हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी 62 ईयर्स तक, 65 साल तक जिंदा रहे, और बुखारी और मुस्लिम की कई अहादीस के रावी हैं, और 7 सबसे ज्यादा सहमत अहादीस रिवायत करने वाले सहाबा में से ये एक है जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहि सलाम। तो वो क्लियर कट कह रहे हैं ना कुरान में इसकी हुर्मत आई, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अज़ल करने से मना किया। दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। बुखारी में 4138, मुस्लिम में 3544, मिशकात में मौजूद है 3186 कि सहाबा कहते हैं कि हम अपनी लोंडियों के साथ सोहबत किया करते थे और फिर हम अज़ल कर लिया करते थे। तो हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हम इस तरीके से अज़ल करते हैं, अलग हो जाते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी लोंडियों से औलाद हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या हर्ज है कि अगर तुम अपनी बीवियों के साथ अज़ल ना करो, क्योंकि जिस जान ने दुनिया में आना है क़यामत तक के लिए वो तो आ कर लगेगी। लेकिन आपने मना नहीं फरमाया, आपने फरमाया जितने मर्जी गिले बाजी कर लो, जितने मामलात मर्जी कर लो, जिस जान ने दुनिया में आना है उसने आना है। और वो ये हदीस तीसरी से मुस्लिम में 3556, मिशकात में 3885। एक सहाबी ने अर्ज किया कि हमें चीज नापसंद है कि हमारी लोंडियों से औलाद हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम अपनी लोंडियों के साथ अज़ल कर लिया करो। इस हदीस में आपने खुद कह दिया कि कर लिया करो अगर तुम चाहो। फिर आपने साथ ही फरमाया लेकिन जो जान मुकद्दर है दुनिया में आना वो आकर यही होता है। वो जनाब वक्फे करते रहते हैं, कटे 3 बच्चे हो जाते हैं सारे के साथ। वो कहते हैं पता ही नहीं चला, पता तो नहीं चलेगा, सारे के मामला तो अल्लाह के हैं। और आप बताऊं ये जो औलाद वाला मामला है ये खाल सकम अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। कई पैगंबर है जो बेऔलाद है, और सूरह शूरा के आखिरी हुक्म है अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, जिसे चाहता है बेऔलाद देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बीवियां बेऔलाद हैं सिवाय हजरत खदीजा के, या एक सैयदा मारिया है, उनसे एक बेटे इब्राहीम पैदा हुए, वो भी फौत हो गए। आपकी सारी औलाद हजरत खदीजा से, बाकी आपकी बीवियां जितनी वो भी बेऔलाद है। क्या उनको औलाद की तमन्ना नहीं होगी सैयदा आयशा को, सैयदा हफ्सा को? होगी, लेकिन ये एक्सक्लूसिव अल्लाह ताला का डिसीजन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जान मुकद्दर है वो आकर रहेगी। फिर कुछ अरसे के बाद वो सहाबी हाजिर हुए और कहा या रसूल अल्लाह मेरी लोंडी जो है वो तो उम्मीद से है, हामिला हो गई है। आपने फरमाया मैंने तुझे कहा नहीं था कि जो औलाद मुकद्दर में है वो आकर रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीजें इंसान का समझता है रुक जाए तो ऐसा नहीं। लेकिन ये याद रखिए ये लोंडी वाला मामला है जो आजाद औरत है, क्योंकि हमारी बीवियां तो लोंडियां नहीं होती है, तो आजाद होते हैं। आजाद औरत के साथ अज़ल करने के लिए बीवी की इजाजत की भी जरूरत है। मर्द अपनी मर्जी से ये डिसीजन नहीं कर सकता। ये सारी हदीस लोंडियों से रिलेटेड है। आजाद औरत और बीवियों के मामले में मियां बीवी दोनों का राजी होना जरूरी है। लिहाजा इस हवाले से सही मुस्लिम से एक हदीस जो पेश की जाती है, कुछ और रवायतें कि अज़ल करना गोया के जिंदा बच्चे को गाड़ देना है या औलाद का कत्ल है, वो तमाम अहादीस कराहत के ऊपर मबनी है या फिर वो मनसूख तसव्वुर की जाएंगी इन अहादीस की रोशनी में। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे उम्मत का इजमा है। अज़ल के जवाज के सब लोग कायल हैं, जिसकी मॉडर्न फॉर्म जो है वो कंडोम का इस्तेमाल है। लेकिन अगर एक दफा प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई हो जाए, एक दिन की हो, लोग पूछ रहे होते हैं 40 दिन ही गुजरे नहीं, 40 दिन के अंदर एक दिन की भी प्रेगनेंसी हो, उसको जाया करवाना कतई हराम गुनाह कबीरा है।
औलाद का कत्ल है, ख्वाह एक दिन की, कोई इसमें नहीं है जी चौथे महीने रूह डाली जाती है, कोई चौथे महीने रूह डाली जाती है तो उससे पहले क्या होता है, बच्चा बड़ा तो हो रहा होता है। उसे रूह के साथ जिंदगी का इशू और है, रूह के बगैर भी एक जिंदगी है, वो इशू और है। वो भी तो बच्चा जो है एक एम्ब्रियो से एक जो है वो जिनीन से मामला पढ़ते पढ़ते आगे जाते हैं, तो वो भी एक जिंदगी है, रूह के साथ एक और जिंदगी है, रूह के बगैर भी जिंदगी उसके अंदर मौजूद है। इसीलिए अगर मुर्दा बच्चा भी पैदा हो तो राजे को जामिया तिरमिज़ी और अबू के हदीस के तहत यही है कि उसका जनाजा भी पढ़ाया जाए। और लोग कहते हैं जिंदा पैदा होगा तो फिर पढ़ाया जाएगा, मुर्दा भी पैदा हो मां के पेट में तो वो जिंदा ही था ना, एग्जिस्ट तो करता था, तो अफजल कौल यही है कि उसका जनाजा पढ़ा जाए। तो ये मेरे भाइयों कुछ इस हवाले से चीजें थी जो मैंने बयान कर दी। अलबत्ता अगर किसी औरत की जिंदगी मौत की कशमकश बन जाए, उस सूरत में अगर वो प्रेगनेंसी का भी ज़ाया करवा देती है फिर उसमें शरीक नहीं, लेकिन जिंदगी मौत की कशमकश इससे कम पे नहीं, सेहत का मामला नहीं, बीवी कमजोर है ये मामला नहीं, वाकई जिंदगी मौत की कशमकश बन जाए, तो फिर वो उसी तरीके से सूरत नहल के अंदर आया कि उस वक्त अगर कोई कलमा कुफर भी कह दे और दिल में ईमान हो तो अल्लाह ताला गिरफ्त नहीं फरमाएगा। और इस हवाले से हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर आज से कई साल पहले, तकरीबन 15 साल पहले की रिपोर्ट है कि रोजाना 3000 बच्चियां मां के पेट के अंदर ही प्रेगनेंसी उनकी ज़ाया कर दी जाती है जब ये पता चलता है कि ये बच्चियां, यानी कुरान अगर कहता है ना बच्चों को दफन करना ये गुनाह कबीरा है, तो ये गुनाह आज तक चल रहा है। बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट तो बदली नहीं है ना, 3000। इसी वजह से इंडिया में मर्दों की तादाद औरतों से ज्यादा है। वैसे आप हैरान तो बात आपको बताऊं, इस साल पाकिस्तान की रिपोर्ट भी आई है, पहले पाकिस्तान में 52% औरतें थी और 48% मर्द थे, लेकिन अब मर्दों की परसेंटेज औरतों से पाकिस्तान में भी बढ़ गई। और उसकी मेन रीजन ये बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह ताला पालने वाला है। 1901 के अंदर यानी जब 20वीं सदी का आगाज हुआ 1 अरब आबादी थी, फिर अल्लाह ताला ने साइंस की तरक्की कराई, इंसान ने बीमारियों का कंट्रोल इस फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर से सीख लिया। और उस वक्त 1901 में कहा जाता था कि 2001 के अंदर अगर दुनिया की आबादी डबल हो गई ना तो रोटी नहीं कोई किसी को मिलेगी। उस वक्त 1 अरब थी 100 साल पहले, या आज से 116 साल पहले, तो 100 साल के बाद 2 अरब आबादी नहीं हुई है, 3 अरब भी नहीं हुई, 4 अरब भी नहीं हुई, 5 अरब भी नहीं, 6 अरब भी नहीं, 7 अरब आबादी हो चुकी है, लेकिन जमीन में अपने खजाने उगलती है। आप जिधर जाए, मैं कसम से मंडी से गुजरता हूं, इतना फ्रूट है खत्म नहीं होता। उस वक्त मोची जूतियां बनाते थे, आज चाइना ने मशीनों के ऊपर इतनी जूतियां बना दी है कि दुनिया में 6 अरब इंसान अगर हर इंसान 10 जोड़े भी खरीद लेना खत्म नहीं होते। तो साइंस ने तरक्की की है। जिस जमीन से 40 मन गंदम निकलती थी आज 400 मन निकल रही है, 10 गुना। अमेरिका लाखों टन गंदम हर साल पैसिफिक ओशन में बहरकाल में जाया कर देता है, एक्सेसिव पैदा होती है। इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए लाखों टन गंदम जाया की जाती है, एक्सेसिव पैदा होती है। तो अल्लाह ताला ने तरक्की भी करवा दी उसके पास है। आप टेंशन ना लें, आज तो कैसे कैसे 1960 से पहले तो ऐसा उस बड़े पैमाने के ऊपर तेल की नेमत तो नहीं थी दुनिया में। इन अरब मुल्कों में 1960 के बाद तेल मिली। वैसे तो तेल का पहला कुआं 1748 में अमेरिकन जो स्टेट है पेंसिल्वेनिया, उसमें दरियाफ्त हुआ था, लेकिन मेन तेल जो निकला है वो इसी 20वीं सदी में किसी ने सोचा नहीं। और आपको इससे भी बड़ी एनर्जी का सोर्स है वो सोलर एनर्जी। अब चाइना ने काम करना शुरू कर दिया, आप देखेंगे 10-15 सालों के अंदर जो है वो हर बंदे ने अपना जो है ना बिजली का सिस्टम अपने घर के ऊपर लगाया हुआ होगा। और ये सूरज वाले तो जब तक सूरज है उस वक्त तक जिंदगी है, ये तो ना खत्म होने वाला जो है वो सोर्स है। रिन्यूएबल जिसे हम कहते हैं अपनी साइंस की लैंग्वेज। बाकी ये जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, तेल खत्म हो जाएगा तो खत्म हो गया, लेकिन ये सोलर एनर्जी जब तक सूरज है जमीन पे जिंदगी है, जमीन पे जिंदगी है तो सोलर एनर्जी से आप फायदा उठा सकते हैं। बात अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने की अल्लाह ताला हमारे दिलों में नासिब फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से गलत बात निकल गई आज तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे, हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।